before you move, let me just uh, give like uh, I mean protocol of this meeting. Let me say, Yeah, yeah. सभी लोगों की queries लेंगे, but it's good like if everybody just raise their hand in the chat, and then I will allow them to speak, so that only one question goes to you for any. Is it fine, everybody? Just you guys can raise your hand. Yes. Fine, fine, fine. That's good. Yes. So what I plan to do is I plan to quickly start from few demos in a sense that there are certain. I can you please mute this mic? Hi, Amit. It's Lalit. Sorry. Sunilji, can we record this session so that it's available for the later time, please? Yes, this is If it's recorded. still, if it's This is recorded by default. Right. thank you, sir. Yeah. So what I was saying is what we plan to do is I plan to start up with a few things, showing you all how to go about it in terms of accessing the customer data, because that is the prima facie most important thing for bothering buyer as of now. And done a demo in the previous meeting about the payment part of it. So उसको एक बार हम फिर से re-review कर लेंगे, and then we will start taking questions. So I think what I am doing is I am sharing a screen with you all. I will start up with the customer data because lot many things have been changed. आप सभी को पता होगा कि एक customer data आया था जिसमें कि बहुत सारे issues आए थे. There were certain data which was not uploaded. The site was itself in a testing phase. Sunil has also complained about it, wherein the OTP was popping up in the same window. So the security, there was a threat of security breach in terms of accessing the buyer's data. uh, the illegal use was quite possible at that juncture. तो सुनील ने भी उसका एक written demo दिया था, and I had shared the demo with the receiver. I myself had spoken to you in that same morning. I updated you all also. So उसमें कुछ changes हुए हैं. Now what I plan to do is I plan to give you a quick demo of it. So I'm sharing a screen. Sunil, can you Sure, sure. enable Let me give you this? access. Yeah. Yeah. Let me see. Okay. Now you should be able to host it. Oh, so here I go. So what I am doing is I'm sharing. I'm starting with the customer data part of it, and I don't know how many are terrace homes buyers or perhaps other buyer, but I think this video is being recorded, so anyone or everyone who would be looking at it probably will see to it. Now I am starting with the customer data. When you go to the receiver's side, you can also go to the Centurion Park. I mean, ये Centurion Park की साइट के बारे में हम हमेशा बात करते हैं. इस साइट को बनाने का जो विजन था वो ये था कि वन स्टॉप सोल्यूशन जो है, वन स्टॉप सोल्यूशन जो आप सबको मिले इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है जो आप चाहते हैं. लेकिन रिसीवर की साइड में क्या है कि रिसीवर साइट जो है वो एक इंक्लूसिव साइट है. इट्स अ डैशबोर्ड फॉर ऑल बायर्स. एवरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड एवरी सिंगल प्रोजेक्ट इज बीइंग कवर्ड. सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसका जिसका कोहेसिव मीनिंग निकालना जो है थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाता है एट टाइम्स पे. तो हमने ये विंडो जो बनाई है सेंचुरियन पार्क की इसीलिए बनाई है. आप सबको ये सेंचुरियन पार्क की वेबसाइट दिख रही होगी, आई एम श्योर. यस राइट राइट. तो ये दिख आप रही। राइट, तो इसमें हमने क्या किया है कि आप ये देख रहे हो रनिंग विंडो जो है, दीज आर रनिंग ब्लॉग्स. मतलब ये अभी होने वाली सारी जो अभी रिसेंट अपडेट्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. इसमें ऊपर देखेंगे आप डाउनलोड सेक्शन है. इस डाउनलोड सेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिटेल जो हमने अभी तक अपलोड किया है, जैसे आप देखेंगे कि जब लेटर ऑफ अवार्ड आया था लो राइज का तो हमने वो अपडेट किया था. बिड्स से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हैं. डीपीआरस इसमें अपलोडेड हैं. पुरानी गाइडलाइंस जो बायर्स को दी गई थी वो हैं.
बहुत सारे नंबर ऑफ डिटेल्स आप देख सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन नंबर्स है। बहुत सारे लोग इस बात को लेके कंटिन्यूसली ग्रुप में स्पैमिंग कर रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मेरा एप्लीकेशन नंबर क्या है, मेरा कस्टमर आईडी क्या है। तो ये हमने पिछले नवंबर में ही इसको फ्लोट कर दिया था और मैंने अपलोड भी कर दिया ये साइट पे। जो भी बायर 3 फेज के हैं वो इसको जाएं, डाउनलोड करें और लेफ्ट साइड में अपना रजिस्ट्रेशन या कस्टमर या एप्लीकेशन, तीनों एक ही चीज है, इसको यहाँ से ले लें। बहुत सारे लोगों ने पूछा था शुरू में नवंबर दिसंबर में, जो लोग नए जुड़े थे, जो लोग कोर्ट से रिलेटेड नहीं, उन्होंने पूछा था कि हमारी प्रेयर क्या थी कोर्ट में, तो हमने ये इसके लिए पिटीशन भी डाली है। इसी तरीके से हमने जितनी मीटिंग की है आज तक, बायर्स की मीटिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखी है हमने, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनबीसीसी की अपलोडेड है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब जैसे ब्रोशर है, ब्रोशर भी हमने इसमें डाला हुआ है। जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी कि हमारा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीटेड है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि खासकर टेरेस और ट्रॉपिकल वालों का, क्योंकि वो 2015 से काम बंद था, तो क्या रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट हमने तब बनाई थी, मैंने खुद पर्सनली 33 टावर्स को टॉप टू द बॉटम इंस्पेक्ट किया था, एक एक चीज बनाई थी हमने, और बाकी फिर हमने म्यूचुअल कंसेंट के साथ ये कोर्ट में सबमिट की थी और इसी को एनबीसीसी ने लेके आगे डीपीआर में कंटिन्यू किया है। बहुत सारी चीजें इसमें हमने मेंशन की थी। अब डिमांड लेटर्स की बात बहुत सारे बायर्स कर रहे हैं, खासकर बैंक की, तो डिमांड लेटर जो है वो यूनिफॉर्म बनाया गया है कोर्ट रिसीवर के साइड पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें से जो रिसीवर के डॉक्यूमेंट हैं वो भी हैं, जो बाहर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी है। जिसको भी डिमांड लेटर देना है बैंक को, वो यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकता है। बैंक को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एग्जिस्टिंग फ्रेश लोन्स के लिए, वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। पेमेंट शेड्यूल एनबीसीसी का क्या है वो यहाँ पे हमने डाल रखा है, सारा डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब इसके बाद अगर किसी को ऑर्डर पढ़ना है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की साइट पे जाएगा, यहाँ पे इस पेज पे आएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं मोस्ट रिसेंट भी आपको यहाँ दिख जाएगा, 25 वाला आप देखिए, ये भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये साइट हमने, और बहुत सारा वीडियो गैलरी भी है जो आज हम मीटिंग कर रहे हैं। सुनील, जितनी भी हमारी मीटिंग्स आज तक होती हैं, सुनील उन सारी मीटिंगों को यहाँ पे वीडियो गैलरी में अपलोड कर देते हैं। यहाँ आप देखेंगे सारी मीटिंग्स, आप देखो यहाँ पे दिख रही होंगी। अगर किसी भी ग्रुप का कोई भी बायर है, आई एम नॉट ओनली स्पेसिफिकली सेइंग टू आवर ग्रुप, बट ब्रॉडली हम जब भी बात कर रहे हैं, जैसे आज हम कस्टमर डेटा की बात कर रहे हैं, ये हर किसी के लिए है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम कोई भी डिटेल मीटिंग कर रहे हैं, ये सारी यहाँ पे सुनील के थ्रू, सुनील वी आर गेटिंग इट हियर। बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरीके से बहुत सारे फीचर्स थे जो हमने इसमें अभी डिसेबल कर रखे हैं, ये आप सभी के लिए हैं। अगर आपकी किसी की भी कोई भी क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को अपना कस्टमर डेटा कैसे एक्सेस करना है, कस्टमर डेटा के लिए आप देखिए पूरा लिखा हुआ है। ये पूरी वेबसाइट जो है, ये जो पेज है, ये सिर्फ डेडिकेटेड है रिसीवर के लिए, रिसीवर की साइट के लिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका डिटेल क्या मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा। अब क्योंकि कुछ डेटा आज अपलोड हुआ है एंड स्पेसिफिकली इट हैज बीन टोल्ड टू मी कि इस पूरे कस्टमर डेटा में आपको क्या मिलेगा। इस पूरे कस्टमर डेटा में आपको सिर्फ आपसे रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आपने कितना पैसा बिल्डर को दिया, कितना बाकी है, कितना सर्विस टैक्स है, इन सारी जानकारियों के लिए कस्टमर डेटा फिलहाल में भी वो फीचर इनेबल नहीं है और ना आपको मिल रहा है, तो वो आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है। उसी तरीके से हमने यहाँ बनाया है। अगर किसी को एक्सेस करना है तो क्योंकि कस्टमर डेटा रिसीवर की साइट पे है, हमने उसको सिंक्रोनाइज कर दिया है। आप रिसीवर की इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप कस्टमर डेटा पे आ जाएंगे। अगर आप रिसीवर के इस डेटा से नहीं आना चाहते तो आप हमारे डेटा के थ्रू भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं इस पेज पे, तो कस्टमर डेटा पे आइए। कस्टमर डेटा को एक्सेस करने से पहले I strongly suggest all of you to read the instructions because it is very important that you must read these instructions. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये पार्ट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बता रहा था। ये जो डेटा अपलोड किया गया है, ये एक वेग डेटा है जो कि आम्रपाली के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और इसको ही ऑडिट में यूज किया गया है, इसको ही यहाँ पे दिखाया गया है। अगर किसी के डेटा में कोई भी चीज मिसिंग है, अगर उसका डिटेल नहीं आ रहा है, I don't know, Akshay is here. Akshay has given me a message that he is unable to get his data. I too tried searching his data, but somehow उसका डेटा नहीं आ रहा है। Amit ji, sorry to interrupt you. There are a couple of people, they are trying to admit to this meeting. Can you please admit all? Participant के ऊपर एक admit का option होगा,
because right now you are host, so I am not able to control it. Let me see. जहाँ Admit पे all, right? हाँ admit all कर दीजिए. Okay, yeah, Is it done? It yeah, says it two is done. people, one person is still waiting. Yeah, so just keep eye over there. अगर आपको कोई admit के लिए दिखता है तो just admit All कर. right, I'll do that. So इस पार्ट को आप सभी पढ़ें, which I had highlighted in blue. ये पूरा डेटा आपको पता चलेगा, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं डू रीड इट. जब आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया, क्लिक इंस्ट्रक्शंस पे जाएं और यहाँ पे जाके इसको इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक अक्षय और भी जो बायर जो अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा है या जिसका डिटेल नहीं आ रहा है, उनको क्या करना है. उनको ये जितनी भी यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट ट्रांसफर का डिटेल दिया है, बहुत सारी डिटेल है जिसके बारे में अगर आपका नाम मिसिंग है, जैसे अक्षय ने पूछा मेरा नाम मिसिंग है, व्हाट शुड आई डू नाउ. तो अगर आपका नाम मिसिंग है, आपका डेटा ये फुल्ली अपलोडेड डेटा है, देयर इज नो टेस्टिंग पेंडिंग नाउ, डेटा हैज बीन अपलोडेड. कई बारी ऐसा होता है कि देयर इज नो ऑटोमेशन और देयर इज नो फॉर्मूला यूज्ड इन अपलोडिंग दीज डेटा. ये एक एक्सेल फॉर्मेट से अपलोड किया जा रहा है. कई बारी मतलब मशीन एरर भी हो सकते हैं, छोटे मोटे एरर भी हो सकते हैं जिसमें कि आपका डेटा कई बारी हम भी एक्सेल में ढूंढने की कोशिश करते हैं, कई बारी वो आता नहीं है, बट हम जब उसको माइन्यूटली देखते हैं तो वो आ जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना भी ये डेटा पॉइंट नंबर 7 में जिसका भी डेटा नहीं मिल रहा है, वो प्लीज ये सारा डेटा जो है इसको नोट कर लें. नोट करने के बाद ये इसको अपने ईमेल में या जहां भी आपको यूज करना है वो करें, और उसके बाद ये जो डेटा है आपको रिसीवर को भेजना है. रिसीवर को कौन से ईमेल पे भेजना है, ये इसके बाद ये वाला आईडी आप देख रहे होंगे, receiver@gmail.com. रिसीवर से कस्टमर डेटा से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन फोन पे नहीं होगा, कोई भी डिस्कशन जो है उस पे नहीं होगा, व्हाट्सएप पे नहीं होगा, उनके ऑफिस में नहीं होगा, और कोई भी अदर आईडी पे नहीं होगा, सिर्फ इसी आईडी पे होगा. आप सब इस आईडी को नोट करके और जिसका डेटा नहीं मिल रहा है वो उस डिटेल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भेज दें. अब नाउ आई विल गेट इनटू द सर्च पार्ट ऑफ इट. अब आपने ये डेटा पढ़ा, अब विजिटर के लिए क्या डूज एंड डोंट्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. हाउ दे विल हैव टू गेट थ्रू विद दिस पोर्टल, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है. अगेन आखिरी में लिखा है सच विजिटर नीड टू सेंड द रिक्वेस्ट. अगर आपका इसमें डिटेल नहीं मिल रहा है डेटा में तो आप यहाँ पे भेज दीजिए. अब एज अ लेमैन सारे जाएंगे यहाँ पे, कंटिन्यू करेंगे. ये विंडो आपके सामने ओपन हो रही है. इस विंडो में बेस्ट तरीका है सर्च करने का, आइदर यू यूज योर कस्टमर आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मैंने अभी इसके पहले आपको डाउनलोड पेज में दिखाया था वहां से कर लें, या फिर आपके पास जो आम्रपाली ने कभी रसीद दी होगी उस रसीद में आपके पास वो सारी चीजें जो लेफ्ट साइड में टॉप में अगर देखेंगे आप तो वहाँ कस्टमर आईडी उस रसीद के लिखी हुई होती है, तो वो वहाँ पे आप जाके उसको यूज कर सकते हैं. वो उसको मैच कर लेंगे, वो भी वही है और ये भी वही है. अब आपको क्या करना है कि आपको पहले अपना प्रोजेक्ट चूज करना है. जैसे मेरे केस में मैं अपना आपको डेमो दे रहा हूँ, सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स मेरा है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पे मैं या तो अपना जो हमको फॉर्मेट यूज करना है सर्च के लिए वो ये करना है. जैसे मेरा आम्रपाली टेरेस होम्स है तो मैंने ATH डाला डैश और फिर उसके बाद मेरा नंबर. इसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. अगर आपने गैप किया है तो प्रोबेबली ये सर्च नहीं करेगा. आप या तो इससे सर्च कर सकते हैं या फिर आप अपना एप्लीकेंट का नाम डाल सकते हैं. अगर आप अपना नाम भी डाल देते हैं तो आप इसमें सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने एप्लीकेंट नाम डाला, मेरा नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. Just give me a second. How can I? Here. तो अगर आप देखेंगे तो ये विंडो आई. अभी मैंने नॉर्मल नेम सर्च किया, नेम सर्च करने से आ गया अमित गुप्ता सर. अमित गुप्ता सर. यस सर जैसे सपोज करिए मैंने चेक किया अपना ये प्रोजेक्ट नेम और अपना फ्लैट नंबर डाल के, बट उसमें मेरी डिटेल समथिंग मिसमैच हो रही है, मतलब मैच नहीं हो रहा उसमें जो मेरे पास एग्रीमेंट है और जो इस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है पोर्टल पे. तो उस केस में क्या करना है?
आई जस्ट एक्सप्लेन कि इसके पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पे आपको ईमेल करना है रिसीवर को, जो आपकी प्रॉब्लम है वो लिखना है, और जो डिटेल्स उन्होंने मांगी हैं आपके बीबीए के अकॉर्डिंग जो डिटेल है वो वहाँ पे लिखना है आपको, और आगे करेक्शन के लिए भेजना है। लेकिन वो करने से पहले अभी मैं जब नेक्स्ट स्टेप आऊंगा, आप वो नेक्स्ट स्टेप एक बार देख लें, एंड देन आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, क्योंकि हो सकता है कि जो आप करना चाह रहे हैं उसका आंसर इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको मिल जाए। तो जस्ट वेट फॉर दिस डेमो टू कंप्लीट। अब ये तो हमने नेम सर्च किया था। अब अगर हम नेम के अलावा सपोज हम अपना कस्टमर आईडी से करते हैं, तो कस्टमर आईडी से भी आपका सर्च में आप देखो आ रहा है, पूरा नेम डिटेल सब कुछ आ रहा है। अगर आपको लगता है 3 बेस्ट तरीके जो मैंने बताए, कस्टमर आईडी, नेम और उसके बाद आपका यूनिट नंबर, अगर आप यूनिट नंबर, बट रिमेंबर वन थिंग, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए अगर आप इसको कर रहे हैं तो। अगर किसी का विदाउट स्पेस आ रहा वेल एंड गुड, बट सही तरीका ये है कि जैसे B9 इज माई टावर, देयर इज अ डैश बिटवीन इट एंड दिस इज माय फ्लैट नंबर, इसको भी आप सर्च करेंगे तो ये 3 बेस्ट तरीके हैं। कई बारी आना तो चाहिए इसमें, लेट्स सी, आपको 09 पुट ना इसको हम गैप करके भी ले सकते हैं, इट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सर वो 0901 करने से आई थिंक हाँ 0901 करिए तो आ जाएगा। ओके, यू नीड टू पुट डैश, I'll put it in, right. तो इसको ये करने से भी आप देख सकते हैं। नाउ द सेकंड स्टेप ये है कि सपोज किसी ने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देखा, किसी ने अपना ईमेल देखा, इफ यू वांट टू रीसेट इट, रीसेट मतलब यहाँ पे ये फैसिलिटी जो है, ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है ताकि आप स्वयं अपना ईमेल आईडी को अपडेट कर दें। आप सबमिट का रिक्वेस्ट डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ बेसिक वैल्यू डालना है आपको। अब हर किसी का क्वेश्चन, आप लोग अभी बहुत सारे लोग आई थिंक मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि बेसिक वैल्यू क्या है। मैंने पहले भी ये बताया है कि आपको बेसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, बट आई विल गो थ्रू विद बेसिक पार्ट ऑफ इट। एक बार मैं आपको बता देता हूँ सो दैट सर प्लीज रिपीट वंस मोर दिस थिंग, बेसिक वैल्यू एंड ऑल। ये वाला आपको एक सेकंड, ये शायद स्क्रीन शेयर पे ही दिखेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपका स्क्रीन शेयर है। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, कैन यू सी दैट? आप लोगों को दिख रहा है वो? हाँ जी जी विजिबल। नो आई थिंक आई इस सब शेयर कर रहे होंगे, स्क्रीन दिख रही है रिसीवेबल वाली। जस्ट गिव मी अ सेकंड। I am stuck somewhere. मुझे भी इतना I am not versed with this, तो at times मैं भी stuck हो जा रहा हूँ इसमें। Now how would I come back to my meeting? Screen share. Okay. तो ये जो बेसिक वैल्यू वाला पार्ट है, ये बेसिक वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा? जो आपका बीबीए का थर्ड पेज है, जो मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था कि बीबीए का जो थर्ड पेज है वो कहाँ पे होता है। तो वो थर्ड पेज में आप जब जाएंगे, लेट्स सी न्यू शेयर, एक सेकंड दो आप मुझे। आपकी स्क्रीन दिख रही है अमित जी? आपका माउस भी दिख रहा है? मेरा दिख रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। तो आई नीड यस यस नाउ विजिबल। ओके, 1 मिनट, 1 मोर मिनट। ये आप लोगों को पिक्चर दिख रहा है? हाँ जी, ये एंटर बेसिक वैल्यू, एंटर एरिया एंड ऑल दोस थिंग्स आर विजिबल। Just give me a second. This one. ये दिख रहा है आपको? हाँ जी। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। ये एक्चुअली आपका बीबीए का थर्ड पेज है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्योंकि मैंने साइज इमेज थोड़ा बड़ा किया है। कुछ भी क्लैरिटी दिख नहीं रही है इसमें, मतलब रेड रेड सर्कल सा दिख रहा है बट हाँ ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्योंकि वो वीडियो जो पेज था वो शायद इसमें फट रहा है। बट एनीवेज ये थर्ड पेज, इस तरीके का थर्ड पेज आपका बीबीए का होगा। उसमें आप देखेंगे तो ऊपर के साइज में आपका यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है ना, आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा और अपने थर्ड पेज को उससे जोड़ दीजिएगा जब आप करेंगे तब। तो ये यहाँ पे यूनिट रेट आपका लिखा होगा, यूनिट नंबर लिखा होगा, जो भी आपका फ्लैट नंबर होगा, टाइप लिखा होगा, यहाँ सुपर एरिया लिखा होगा, यहाँ पे आपका बेसिक रेट लिखा होगा। जैसे मेरे केस में 19 लाख समथिंग बेसिक रेट है, यहाँ पे ये लिखा होगा। और
ये जो चार्ज है पीएलसी चार्ज, ये बेसिक प्राइस है मेरा, मतलब ये टोटल बेसिक प्राइस मतलब पीएलसी प्लस बेसिक सेल्स प्राइस इज माय बेसिक सेल्स प्राइस। तो ये 19 लाख रुपए जो है ये मेरा यहाँ पे इसमें आपको मिलेगा। अदर चार्जेस का एक बॉक्स बना होगा, मेरे ख्याल है टेरिस, ट्रॉपिकल और टीजी तीनों के लिए, और टेरिस होम्स तीनों के लिए इसी तरीके का इन्होंने बनाया था। अदर चार्जेस का एक अलग कॉलम बनाया था और फिर टोटल कॉस्ट लिखा था इन्होंने। तो अब यही चीज जो है हम वो आएंगे इस वाले विंडो पे जब हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे हमको बेसिक वैल्यू लिखना है, जो भी आपका बेसिक वैल्यू आए अपने बीबीए के अकॉर्डिंग लिखिए, जो भी आपका एरिया आए। अमित जी एक क्वेश्चन है कि ये जैसा कि ये फॉर्म कहता है if we need to update the mobile number then only we need to fill this form, right? हम वही कर रहे हैं अभी फिलहाल में, वही कर रहे हैं, उसी विंडो पे हैं हम लोग। ये विंडो जो अच्छा, मतलब अगर मेरा मोबाइल नंबर और अगर मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सेम है तो we don't need to do anything, right? In this section. No, you need not to do anything. मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो नए बायर्स इसमें जुड़ रहे हैं अभी, जो एकदम से जो अभी जुड़ रहे हैं, वो इस वीडियो के कंप्लीशन के बाद ही अपना क्वेश्चन करें, क्योंकि फिर हम ऐसे में काफी लेट हो जाएंगे इसको करने में, एंड वी वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट यू नो एज पर द शेड्यूल। तो इस विंडो में हम आए, यहाँ पे अगर किसी को चेंज करना है तो हम रीसेट वाले पे जाएंगे और वहां पे चेंज करेंगे। अब इसके आगे हम अगर और ये रिमेम्बर वन थिंग, आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो एट मैक्स 2 आप यहाँ तक देख पाएंगे, यहाँ तक ईमेल तक। आपको ये एक्शन विंडो शायद आपके मोबाइल में नहीं दिखेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मोबाइल का साइज क्या है। अगर बड़ी स्क्रीन है तो कुछ ज्यादा दिखेगा, छोटी है तो और नहीं दिखेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा लैपटॉप, आईपैड या इस पे करें जिसमें बड़ा वाइडर स्क्रीन होता है, ताकि आप इसको देख पाएं। अगर मोबाइल में होता वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप डेस्कटॉप पे ही करिए। अगर आपको ये डेटा के अंदर जाना है, जो मेरा डेटा है, तो आप एक्शन बटन पे क्लिक करिए यहाँ पे। जैसे आप एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको एक ओटीपी मांगेगा। आई थिंक मेरा, give me a second. Yeah, Amit. Yeah, from where we can get the OTP? OTP you will आपके get मोबाइल फोन mobile. पर आएगा। OTP आपके मोबाइल फोन पर आएगा। हाँ, so now it is coming to mobile. पहले it was what was happening कि Yes. यहीं पे मोबाइल पे यहीं पे आ जा रहा था, and it was creating a breach. तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती थी कि कोई भी इसको देख सकता था। अब हमारा मोबाइल पे आ रहा है, तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, जो आप ये देख रहे हो ना मोबाइल नंबर, इन पे ही आएगा। अगर ये नंबर आप चाहते हो कि ओटीपी इस पे आए और आपके पास ये मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, तो आप रीसेट मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे जाइए और इसको रीसेट करिए पहले। और अगर आपका ये सही चल रहा है तो आप इसको, जैसे मेरा अभी आया तो मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब आप देखिए जब भी हम इसको सबमिट करेंगे, एक सेकंड, हम इसको सबमिट जैसे करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो प्रीफिल्ड आ रही हैं, मतलब कि यहाँ पे किसी को कुछ करना नहीं है। आप देखेंगे आपका नाम, आपका बुकिंग नंबर, एप्लीकेशन, टावर, आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं। जो भी आप मोबाइल अपडेट करेंगे या जो भी इसमें आप करेंगे वो यहाँ पे आके अपने आप हो जाएगा। तो इस पेज तक आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो बेसिक वैल्यू आपको भरनी है, ये आप अपने बीबीए के 3rd पेज पे जाएंगे। अगर ये मीटिंग बंद होती है तो वी हैव टू रीस्टार्ट इट, राइट? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो बेसिक वैल्यू पे जाएंगे, यूनिट एरिया डालेंगे। जैसे सपोज मैंने डाला, आई क्विकली गो थ्रू इट। बेसिक वैल्यू डाला, मैंने अपना एरिया डाला, मेरा अपने आप डिफॉल्ट आ गया यूनिट रेट का। मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं, आपने एक्स्ट्रा चार्जेस वहीं पे चेक कर लिया। मेरा बाय डिफॉल्ट जो है कैलकुलेशन, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप लिख रहे हो वो यहाँ दिख रहा है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी नंबर डिफर किया है, यहाँ पे कुछ डिफर किया है, यहाँ पे कुछ डिफर किया है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अप टू यू, आप अपना इन्फॉर्मेशन सही डालें। फिर उसके बाद आप अपना इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे फिलअप करें। आप जैसे ही विदाउट सर्विस टैक्स कितना पैसा दे दिया, सर्विस टैक्स कितना दिया, जैसे करेंगे यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही आप ये 1 2 3 4 5 ये 5 फील्ड करेंगे, आपका यहाँ बैलेंस ड्यू दिखने लग जाएगा कि आपका बैलेंस कितना है। और यही बैलेंस जो है आपको आगे इसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो बचा हुआ है वो पे करना है। और अगर आपको कोई बैंक रिलेटेड फाइनेंस है तो अगर यहाँ पे इसको बैंक से आना है तो वो बैंक का डालिए, आपका डिटेल है ना तो आपका डालिए। फिर उसके बाद बैंक का स्टेटस करना है। डू नॉट फॉरगेट टू पुट योर रिमार्क, आपका कोई भी रिमार्क है वो यहाँ डालिए और इसको अपडेट कर दीजिए।
जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे आपका डिटेल वहां सबमिट हो गया। आप चाहते हैं आपका ईमेल नंबर चेंज हो, अगर आप पिछली विंडो में नहीं कर पाए या आप और ऐड कराना है कोई ईमेल, जैसे मेरे में 1 लिखा है आपको 2 कराना है, तो आप यहाँ पे इनको लिख दीजिए। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कोई दूसरा चेंज, 1 है दूसरा चेंज हो गया है तो आप दूसरा लिख दीजिए। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करिए। Now I'll come back to the अमित, एक क्वेश्चन है मेरा, जब आप एड्रेस करना चाहें। just give me a second. How would I come back to our original meeting? Yes, बोलिए। अमित, अगर मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ठीक दिख रहा है तो उस केस में भी मुझे ओटीपी जनरेट करके नेक्स्ट स्क्रीन पे ही जाना होगा? नो, यू वुड नॉट। आपको ओटीपी सिर्फ एक्शन जो बटन मैंने एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर में जो एक्शन बटन आपको बताया था उस एक्शन बटन पे जाइए और वहां पे क्लिक करिए। वो नीचे वाला रीसेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसको अपना मोबाइल नंबर कईयों के 2 आ रहे हैं, मेरे केस में आपने देखा होगा 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो वो 2 नंबर्स जो हैं अगर आप चाहते हैं कि 2 में से 1 बदल गया है दूसरा आपको बदलना है तो वो आप उसको वैसे चेंज कर सकते हैं। तो इट्स प्योरली योर चॉइस, जो भी आप जितना भी आप उसको चेंज करना चाहें वो आप उसको कर सकते हैं। नाउ दिस पार्ट इज कवर। अब इसके बाद वी विल टेक क्वेश्चंस पार्ट, बट आई डोंट नो कितना समय इसमें बचा है। जो भी समय बचता है तो अपन नेक्स्ट वाली सेशन में इसको करेंगे। तो आई विल